Hello everyone, this is a video for class 8. Now, this is the video of 15th chapter in history, that is national movement. We are starting with first revolutionary movement. रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई एक मूवमेंट, कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है वो जो आगे से चले आ रहा है, कोई भी एक टाइप ऑफ सोसाइटी, उसे ब्रेक करना या फिर कोई एक रेजोल्यूशन उसे ब्रेक करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, व्हेन द महात्मा गांधी suddenly withdrew the non-cooperation movement, that is discontent grew up among the youth of India, resulted in the revival of the revolutionary activity. Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee, and Sachin Sarnal formed the Hindu Republican Association in 1924. in 1924 में क्या होता है, ये रिपब्लिकन सोसाइटी फॉर्म होता है जहाँ पर कुछ यंगस्टर्स महात्मा गांधी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन वो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, दैट इज़ दे विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, नाउ इसके वजह से कुछ केसेस हुए उस टाइम में। वन इज़ दिस Kakori conspiracy case, and the other is what we call as it as a conspiracy case. Okay, now काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें क्या होता है, कुछ यंगस्टर होते हैं जो 1925 को हैंग्ड होते, they were been hanged for the robbery that is in Kakori, where they stopped a train and robbed all the money from that train. It's in Uttar Pradesh. Okay. Now, in the conspiracy here, there is certain one British officer, that is Sweder. Sweder was shot down by the revolutionaries. Okay, he was shot down. He was responsible for the death of Lala Lajpat Rai in 1928. Okay, Chandrasekhar Azad, along with the Bhagat Singh, formed another association named Hindu Socialist Republican Army. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw two bombs in the assembly in 8 April 1929. Okay, in this incident, many were been killed, but the purpose was to protest against the public safety bills. Okay. Next, we have the Simon Commission. It was an act in 1919. Okay, an inquiry commission which was appointed after 10 years. The main aim of this commission was to look into the works of the reforms introduced by the 1919 Act. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, 1919 Act में जो सब resolutions passed on हुए थे for the India by the British government, इस सब को देखने के लिए the Simon Commission was been formed. So the Indian National Congress as well as the Muslim League both decided to boycott the Simon Commission. British government has refused to accept the स्वराज. ओके, तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन इज बिन टेकन अप बाय जॉन साइमन. ठीक है, जहाँ पर क्या हुआ था, गवर्नमेंट का जो जितना भी एक्ट्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो जितना भी वर्किंग्स था वो सबको देखने के लिए रखा गया था. बट दिस जहाँ जब इसके लिए मीटिंग हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, ये लोग एवरीवन गॉट बॉयकॉट. वो लोग क्या किए, सब लोग बॉयकॉट करना स्टार्ट किए थे. वॉट एवर द ब्रिटिश गुड्स हैज़ बीन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स लोग भी क्या किए, स्वराज को एकदम पूरा प्रोहिबिट कर दिए, स्वराज भी नहीं करने दिए वो लोग को. इन दिस प्रोसेशन रैली इन दिस पर्सन सर्च साइमन कमीशन गो बैक वॉज द स्लोगन फॉर एवरीवन. And for that, lathi charge was also took place on the crowd where Lala Lajpat Rai was badly beaten, and later he got died. Nehru report. Nehru report, according to the Britishers, India was not capable of ruling India. In 1928 at Lucknow, all the parties were
were asked to come on a conference that is considering and drafting the Constitution of India. But Motilal Nehru was the man who appointed as the president of this committee. Okay, but due to the dispute within this was known as द नेहरू रिपोर्ट. ओके, तो नेहरू रिपोर्ट में क्या था? नेहरू रिपोर्ट में सब कमिटीज़ लोग, सब पार्टीज़ लोग को बुलाया गया था फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1928 को. बट दिस वॉज नॉट what we say successful because all the people did not attended. Okay, did not attended, and due to the खुद के बीच में जो वॉर हो रहा था, मतलब आप बोल सकते हो कि कांग्रेस के बीच में और तुम्हारा मॉडरेट्स के बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसकी वजह से वो लोग में डिस्प्यूट था बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द मेंबर्स डिड नॉट एक्सेप्टेड दिस. Okay, now coming to the demand for the Purna Swaraj in 1928 में हुआ है. Okay, they began the Congress in the annual session at Lahore. This part is not so important. Okay, now civil disobedience movement क्या है? गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक टाइप का मूवमेंट है जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ डांडी मार्च. ओके, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1930. ओके, एंड इट कंटिन्यूड फॉर अप टू 1933 तक. ठीक है ना. इसके बीच में क्या होता है? पहला तो होता है डांडी मार्च होता है जो साबरमती आश्रम से लेके अहमदाबाद से डांडी तक होता है. 12 मार्च से स्टार्टिंग होता है 1930 से. तो वो लोग क्या होता है 6 अप्रैल को 1930 में ट्रैवल्ड फॉर 25 डेज. तो यहाँ पर क्या होता है? वो लोग सॉल्ट लॉ को भी ब्रेक करते हैं. व्हाट इज़ द सॉल्ट लॉ? सॉल्ट लॉ इज़ दैट इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स that the Indians cannot sell or cannot use the salt of their own without paying any taxes. They have to pay heavy taxes for the salt because salt at that time is a very important thing that was needed for for Indians or any people in a state, and having itself within our own country and giving a taxes for that, it's not good, or we can say it's not what do we say legal, बट स्टिल दे हैड टू डू. तो इसके अगेंस्ट में ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. तो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये दांडी मार्च हुआ तो गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स को कैप्चर कर लिया गया बिकॉज इन ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अगर ये कंटिन्यू करते रहा तो वो लोग का जो फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है, वो ढीला पड़ जाएगा इंडिया के ऊपर. ओके, बट वो कहाँ तक गया? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स तक भी गया, जहाँ पर नॉर्थ फ्रंटियर्स मतलब नॉर्थ वेस्ट तक ये स्प्रेड कर चुका था. तो एज गांधी जी वॉज वेरी मच प्रोन टू नॉन वायलेंस, तो नॉर्थ वेस्ट में भी ऐसा बहुत सारा आर्मी रेसिडेंशियल्स था, आर्मीज़ थे जो लोग नॉन वायलेंस चाहते थे. तो उसका वहाँ पर कैंपेन बनाया गया जिसको बोला गया खुदाई खिदमतगार्स. Okay, servant of gods. About many peoples were been arrested during this Dandi march and under the claim that they are just violating the rules. ठीक है. तो उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठता है 1930 को ही नवंबर में बैठता है, जहाँ पर हर एक को बुलाया जाता है. बट दिस कॉन्फ्रेंस वाज नॉट अटेंडेड बाय द कांग्रेस, बीन ओनली अटेंडेड बाय द मुस्लिम लीग. जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कॉन्फ्रेंस होता है ये
अप्रूव्ड नहीं होता है, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट अप्रूव वॉज टेकन टू फर्दर डेट्स। अर्ली इन 1931 में क्या होता है, लॉर्ड इरविन आते हैं, जहाँ पर कांग्रेस भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और इवन द मुस्लिम लीग देयर ही हैड पैक्ट विथ Gandhi, where he was been said that all the prisoners along with the Gandhi will be releasing all the political prisoners, and they will that who are being imprisoned on the charge of giving violence, act of violence। ये एग्रीमेंट को क्या बोला गया, गांधी आयरन पैक्ट बोला गया। उसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ हो रहा था उसी टाइम में रिन्यूअल ऑफ सिविल डिसोबियंस मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। मतलब इतना दिन तक तो बंद था जब तक गांधी जी नहीं थे, फिर से अब स्टार्ट होने लग गया। जब स्टार्ट होने लग गया दिस सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, गांधी जी वॉज अगेन गॉट अरेस्टेड इन 1932 एंड द कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, और 1 लाख से भी ज़्यादा आदमी उस टाइम में फिर से अरेस्टेड हो गया। देयरफॉर इन 1933 द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट वाज टोटली सरेंडर्ड और सप्रेस्ड वी कैन सी, ठीक है। उसके बाद क्या था, मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट के मूवमेंट्स में क्या क्या आ रहा है, देखो ऐसे हम लोग जानते हैं हम लोग की इंडिया बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड है, ओके। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं जो इंडियन कांग्रेस के साइड में नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देमसेल्फ रादर देन ऑफ इंडिया। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स के साइड में हो जाते हैं, एंड ब्रिटिशर्स यूजेस दिस प्रोविंसली प्रिंसेस टू स्ट्रॉन्ग टू मेक देयर व्हाट डू वी से पावर मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होता है, in 1927 में an all Indian organization also known all Indian princely all India State People's Conference was formed in 1939, और in 1939 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें प्रेसिडेंट अपॉइंटेड होता है। तो इस पैक्ट में क्या होता है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम द स्टेट्स जॉइंट इन द मूवमेंट। Pragya mandals were formed in some of the states to fight for the right of the people। क्योंकि at that time जहाँ पर सब लोग अपने आप में व्यस्त थे, अपने लिए व्यस्त थे, पीपल्स के लिए नहीं, उस टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ जो सिर्फ पीपल के बारे में सोचते थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ओके, जो 1927 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक चीज़ याद रखना कि हम लोग का जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, दिस वन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नाउ वी आर कमिंग टू हियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। 1935 का गवर्नमेंट एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए, बिकॉज इट वॉज द एक्ट विच स्टार्टेड द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट 2 भाग में डिवाइड होगा, एक होगा स्टेट्स के बेसिस पे और एक होगा क्या हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल असेंबली, ओके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द फेडरल असेंबली, ये एंड what is the function of this Indian Act of 1935? This act of was for the federation and the Indian provinces and the princely states at the center, okay। फेडरेशन के लिए विद इन द स्टेट्स, सब स्टेट्स के भी कांग्रेस मिनिस्टर एंड प्रोविंसेस, ये भी इतना रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। 1937 में क्या होता है, द इलेक्शन टुक प्लेस विद इन द प्रिंसली लेजिस्लेचर फॉर द प्रिंसली लेजिस्लेचर्स एंड द मुस्लिम लीग ऑल्सो फर्स्ट अवॉइड दिस इलेक्शन बट लेटर ऑन पार्टिसिपेटेड इन दैट, ठीक है। लेटर ऑन वो लोग पार्टिसिपेट कर लेते थे। कांग्रेस ओन अ मेजॉरिटी फॉर्म इन अबाउट 7 out of 11 provinces, and the Congress got useful and a federal government got formed, okay। Thank you.